अरे लेट्स कंटिन्यू ओके. अच्छा, so in the last class what were you discussing? Okay, we have already started the chapter complex numbers, right? And we were discussing about imaginary numbers. Okay, so for the sake of revision, let me just go over couple of points. First point is square root square root of negative real numbers. सर आपका स्क्रीन पॉज हो गया है। Screen pause हो गया. Okay, so in the last class we were discussing that square root of negative real numbers are called imaginary numbers, right? For example, square roots of -5. Okay, uh, every number has two square roots. So -5 also has two square roots. Square roots of -5. -5 has two square roots. What are they? Root over of -5. Another is minus root over of -5. Right? Two square roots. Obviously, right? Plus or minus root over of -5. Okay, plus or minus root over of -5. So one of them is root over -5. Another is minus root over of -5. Right? And also we learned how to simplify this. Right? This is in simplification. Simplified version. What? Root 5i. Correct? This is root 5i. Okay, Yes, sir. root over of, Yes, sir. okay, and what is this? Minus root Mine. 5i. Okay, so these two are what? Imaginary numbers. So these two are square roots of -5. These two are square roots of -5, and they are what? They are imaginary numbers. Got it? They are imaginary numbers. Similarly, square root of square roots of -4. Okay, so you see that -4 will also have two square roots, right? -4 will also have two square roots, right? Plus or minus root over of -4, right? Plus or minus root over of -4. One of them will be root over of -4. The other one will be what? Minus root over of -4, right? Okay, and this one is equal to what? 2i. Sir. Yes, 2i. sir. Okay, first find root over of 4, which is 2, then put I by it. Okay, my root over of -1 is I. Got it? Root over of -4 का आप ऐसे लिख सकते हो, root over of 4 into -1, right? Root over 4 into -1. So this is equal to root over of 4 into root over of -1. What is root over of 4? 2. What is root over of -1? I. So this is 2i, right? Two. Okay, and what is this? This is minus 2i, right? Two. Okay, I so see. what are the square roots of -4? 2i and -2i, right? So these are imaginary numbers. 2i and -2i are imaginary numbers. So similarly we can say that examples of imaginary number, right? Examples of imaginary numbers. I, 2i, -2i, 3i, -3i, root 2i, minus root 2i. You got it? Etc. Right? Yes, sir. Hello. Okay. So remember imaginary number जो होते हैं वो कैसे दिखते हैं एक्चुअली? हाउ डू दे लुक? हाउ डू इमेजिनरी नंबर्स लुक? ना सम रियल नंबर इनटू आई, ऐसा फॉर्म में इमेजिनरी नंबर दिखते हैं. अब चेक कर लो, सारे इमेजिनरी नंबर देख लो. इधर क्या है? 1 इंटू आई. इधर क्या है? 2 इंटू आई. इधर क्या है? -2 इंटू आई. इधर क्या है? 3 इंटू आई. इधर क्या है? -3 इंटू आई. इधर क्या है? रूट 2 आई. इधर क्या है? -रूट 2 आई. कोई रियल नंबर में अगर आई मल्टीप्लाई हुआ है तो वैसा नंबर को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर. क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर. आर वी क्लियर? हेलो. Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Yes. Yes, ओके sir. ओके. और ये सब के सब क्या होते हैं? किसी ना किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होते हैं, राइट? सारे इमेजिनरी नंबर किसी ना किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होते हैं. ये सारे इमेजिनरी नंबर, आई, 2i, -2i, 3i, -3i, रूट 2i, -रूट 2i, 7i, वट एवर. ओके, दे आर ऑल स्क्वायर रूट्स ऑफ
सम नेगेटिव रियल नंबर, कोई एक नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट है, राइट। ओके, ध्यान दो। अच्छा, दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी लिखेंगे, जीरो इज ऑल्सो एन इमेजिनरी नंबर, जीरो इज ऑल्सो एन इमेजिनरी नंबर। Well, it is very surprising, right? How is 0 an imaginary number? You must be wondering. Sir has gone crazy. How 0 is an imaginary number? Well, let me tell you one thing. 0 is a real number and 0 is also an imaginary number. 0 is both a real number and also an imaginary number. How? Because you can write 0 as 0 into I, right? Can you not? क्या आप 0 को 0 Yes, sir. into I लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते हैं? ओके, यस सर। Yes. ओके। तो बेटे मैंने जैसे कि आपको बोला कि रियल नंबर दिखते कैसे हैं, हाउ डू सॉरी इमेजिनरी नंबर दिखते कैसे हैं, हाउ डू इमेजिनरी नंबर्स लुक लाइक, इमेजिनरी into I. यस, कोई रियल नंबर इनटू आई ऐसा ही दिखते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का लुक ऐसा होता है, सम रियल नंबर इनटू आई, तो उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। आई मल्टीप्लाई हुआ है तो दैट इज एन इमेजिनरी नंबर। हाँ, ओके। तो जैसे कि ये सारे इमेजिनरी नंबर है, और क्या हम जाने कि ये सब के सब इमेजिनरी नंबर किसी ना किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है, राइट, किसी ना किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है। ओके, और ये भी अभी जान लें कि जो जीरो है, जीरो दैट इज ए रियल नंबर एंड ऑल्सो दैट इज एन इमेजिनरी नंबर। जीरो एक इमेजिनरी नंबर भी है। जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू आई, राइट। तो रियल नंबर इंटू आई फॉर्म में है ना, सो जीरो इज ऑल्सो एन इमेजिनरी नंबर, राइट। हेलो, राइट। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके ओके ओके, तो जीरो इज ऑल्सो एन इमेजिनरी नंबर, जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू आई। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। So this was all about imaginary numbers. Okay, imaginary numbers look like some real number into I. Okay, that's it. Now take the screenshot and we'll move on and study about complex numbers. Okay, one second. Yes, take it. Done. Done. Okay. Yes, sir. अच्छा, anybody has any doubts in this? Anybody has any doubts? What an imaginary number is? क्यों मैं बोल रहा हूँ कि imaginary number स्क्वायर नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट होते हैं, सब समझ में आ रहा है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स? कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है? ओके, फर्स्ट पॉइंट विल मेक ए नंबर in the form of a plus ib, a number in the form of a plus ib where a and b both are real numbers, where a and b both are real numbers. When I say a belongs to r means what? a belongs to real number set. रियल नंबर सेट को कोई एलिमेंट बिलोंग करता है तो हम क्या बोलते हैं, तो एलिमेंट इज ए रियल नंबर, राइट। तो a बिलोंग्स टू r का मतलब a इज ए रियल नंबर, b बिलोंग्स टू r मतलब b इज ए रियल नंबर, राइट। ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib वेयर a एंड b बोथ आर रियल नंबर्स, ओके, इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं पहले इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। क्या लिखा है कि ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, अगर कोई नंबर ऐसा फॉर्म में है, अगर कोई नंबर ऐसा फॉर्म में है, ए प्लस आई बी फॉर्म में है, जहाँ पर ए बी दोनों रियल नंबर्स हैं, ए बी दोनों रियल नंबर्स हैं, तो उस नंबर को हमें कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल से समझ जाएंगे, राइट। फर्स्ट एग्जाम्पल, सपोज मैं लिखता हूँ 2 + 3i। वेल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इधर आप देखो, इस फॉर्म के साथ आप इसको कंपेयर करो, क्या ये इस फॉर्म में है कि नहीं। देखो बेटे, इधर ए के जगह 2 लिखा है और बी के जगह 3 लिखा है, देख रहे हो, a प्लस आई बी फॉर्म है, देख रहे हो, यस सर। राइट। Yes, sir. यस सर। क्या आपको दिख रहा है कि ए बी दोनों रियल नंबर है, दिख रहा है क्या आपको? 2, 3 आर रियल Yes, sir. नंबर्स, राइट। सो इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अगर किसका डाउट है पूछ लो, जल्दी जल्दी पूछो, तुरंत। अच्छा, तो बेटे मैं एक नंबर लिखता हूँ 2 - 3i, राइट।
2 माइनस 3i। अभी 2 माइनस 3i भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप बोलोगे सर कैसे, ही तो इस फॉर्म में नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो दिखा देते हैं। हाँ, अगर नहीं दिख रहा है तो दिखा देते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें छुपे सर 2 होते हैं। प्लस माइनस 3 यस बेटे, क्या Yes, इसको ma'am. मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस माइनस Whole- 3 इंटू आई, एक ही बात है ना, राइट, सेम एक ही बात है। ओके, तो अब ये आ गया आपका a प्लस आई बी फॉर्म में, a प्लस आई बी फॉर्म में आ गया, राइट। वेयर a इज व्हाट, a इज 2, b इज व्हाट, b इज माइनस 3, दोनों रियल नंबर्स, राइट। चेक करो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. माइनस Yes, sir. माइनस 2 माइनस 3i, बेटे माइनस 2 माइनस 3i को लिख सकते हैं माइनस 2 प्लस माइनस 3 इंटू आई। इधर भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। तो देख सकते हो Yes, sir. ए की जगह माइनस 2 लिखा है, बी की जगह क्या लिखा है, माइनस 3 लिखा है, राइट। ए प्लस आई बी फॉर्म में है, देखो ए प्लस आई बी, दिस इज ए, दिस इज बी, ए प्लस आई बी, राइट। सो इट इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। अच्छा, तो और एक एग्जाम्पल लिखते हैं, राइट। सपोज मैं लिखता हूँ 3i प्लस 2, 3i प्लस 2, दिस इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, 3i प्लस 2 कहाँ से इस फॉर्म में आ गया, राइट। बेटे देखो, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 3i प्लस 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 2 प्लस 3i, Yes, sir. राइट। 3i प्लस 2 को 2 प्लस 3i लिख सकते हैं। ओके, अब आ गया इस फॉर्म में, अब आ गया a प्लस आई बी फॉर्म में। Yes, sir. a की जगह 2 लिखा है, b की जगह 3 लिखा है, सो दिस इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरीबॉडी गॉट इट? ओके, यस सर। ओके ओके। तो सो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको आइडिया चला कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता कैसे, राइट, होता कैसे। नेक्स्ट पॉइंट, ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर को स्मॉल जेड के द्वारा हम डिनोट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देता हूँ, सपोज मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ जिसको लेता हूँ Z1, लेट Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2i, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ Z2 इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2i, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर आप जेड के द्वारा उसको डिनोट किया जाता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का नामकरण जो करना चाहते हो, जैसे कि बच्चे पैदा होता है, बच्चा का नामकरण करते हैं, सेट का आप नामकरण करते हो, डिनोट करते हो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी के द्वारा, उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम डिनोट करते हैं जेड के द्वारा। हाँ, और अगर नीचे एक छोटा सा 1 2 देते हैं तो क्या पता चलता है कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हो Z3 Z4। यू गॉट इट? सो फार यू गॉट इट? हेलो? यस सर। Yes, sir. Yes. ओके ओके, सो दैट्स इट। सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड। ओके, नेक्स्ट, in a complex number z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ओके, where we know that a and b are what, real numbers, a and b are real numbers। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। बेटे इधर हम जो a है ना, a को क्या बोलते हैं पता है, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। a इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। a को हम कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, z का रियल पार्ट है a, z का रियल पार्ट क्या है बेटे? a, समझ में आ रहा है? z का रियल पार्ट है a। यस सर। और उसको डिनोट कैसे करते हैं पता है? ऐसे, RE ब्रैकेट के अंदर z लिखते हैं। z कॉम्प्लेक्स नंबर है, z का हम रियल पार्ट को ऐसे लिखते हैं, RE ब्रैकेट के अंदर z। तो इधर RE ब्रैकेट के अंदर z का वैल्यू क्या है? a। गॉट इट? मतलब z का रियल पार्ट, z का रियल पार्ट। गॉट इट? हेलो? Yes, sir. यस सर। ओके। Yes, sir. एंड जो b है ना, स्मॉल b, इमेजिनरी पार्ट। यस, उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का उसको हम इमेजिनरी पार्ट
बोलते हैं, ओके। और उसको कैसे डिनोट करते हैं, उसको कैसे डिनोट करते हैं ना, आई एम ब्रैकेट के अंदर जेड, ऐसे डिनोट करते हैं उसको, ठीक है। तो इधर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कौन है, बी है, हाँ, इमेजिनरी पार्ट। तो कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, हाँ, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को और डिटेल से समझ में आ जाएगा, ओके। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा z इज इक्वल टू 3 + 2i। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट कौन है, इमेजिनरी पार्ट कौन है, इसका रियल पार्ट मतलब रियल पार्ट ऑफ z, हाँ, क्या है बेटे। देखो आप ना पहले इसको a + ib फॉर्म में कंपेयर करो, इसको a + ib फॉर्म के साथ कंपेयर करो, राइट, इसी फॉर्म के साथ कंपेयर करो। जो a है दैट इज द रियल पार्ट, एंड जो i के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है, जो नंबर i के साथ मल्टीप्लाई हुआ है दैट इज द इमेजिनरी पार्ट, राइट। और इधर आपका रियल पार्ट कौन है, 3 है, गॉट इट। एंड व्हाट इज द इमेजिनरी Yes, sir. पार्ट, 2, 2. ओके। everybody understood, Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके। और एक एग्जांपल लेते हैं, 3 - 2i। इधर व्हाट इज द रियल पार्ट, इसी के साथ कंपेयर करो, रियल पार्ट इज इक्वल टू 3, राइट, चेक करो। 3. बट व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट, -2. -2। बेटे इसके साथ कंपेयर करो, एक्चुअली इट इज व्हाट, 3 + -2 इंटू आई। इस फॉर्म में आप इसको लाओ, b इज द इमेजिनरी पार्ट, और b इधर क्या है बेटे, -2 है, यू गॉट इट, इमेजिनरी पार्ट इज -2, क्लियर, Yes, sir. क्लियर, Yes, sir. ओके। व्हाट अबाउट द रेस्ट, Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. Suppose I am writing a complex number z is equal to -2 - 4i. What is the real part of this complex number, So -2. -2. What is the imaginary part of this complex number, -4. -4, right। बस i के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है दैट इज इमेजिनरी पार्ट, और जो रियल नंबर है उसमें वो दैट इज द रियल पार्ट, गॉट इट, ओके, ओके, एवरीबॉडी क्लियर, ओके। तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट रिकग्नाइज कर पाओगे। और एक एग्जांपल ले जाते हैं, Yes, sir. और एक एग्जांपल ले जाते हैं, z इज इक्वल टू -3i + 2। बेटे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, क्योंकि आप इसको a + Yes, sir, ib yes, sir. फॉर्म में ला सकते हो ना, a + ib फॉर्म में, ओके। 2 + -3. यस, व्हाट विल बी इट्स रियल पार्ट, The 2. 2। 2. व्हाट विल बी इट्स इमेजिनरी पार्ट, -3। 3. आप इसको उसी फॉर्म में ले आओ, 2 - 3i, हाँ, तो रियल पार्ट इज 2 एंड इमेजिनरी पार्ट इज -3। एवरीबॉडी गॉट इट, राइट, Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. okay. Very important note, let me write here, do not confuse imaginary part with imaginary number, कभी इमेजिनरी पार्ट एंड इमेजिनरी नंबर ये दोनों को कंफ्यूज मत कर देना, मतलब ये सेम मत सोच लेना, ये अलग होते हैं। इमेजिनरी नंबर अलग चीज़ है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट वो अलग चीज़ है, दे आर नॉट द सेम, यू गॉट इट, हेलो, ओके, Yes, sir. ओके। सो रिमेंबर, Yes, sir. imaginary part of a complex number that is a real number, right, is a real number, ये खुद एक रियल नंबर होता है। तो इमेजिनरी पार्ट एंड इमेजिनरी नंबर सेम मत कर लो। जैसे कि मैं सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूँ, z इज इक्वल टू 2 + 3i, इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है, व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट, 3, राइट, 3, राइट, हेलो, एंड दैट इज ए रियल नंबर, राइट, दैट इज ए रियल नंबर। तो Yes. Yes, sir. तो इमेजिनरी पार्ट एक रियल नंबर होता है, राइट, वो पार्ट नॉट इमेजिनरी नंबर, दैट इज पार्ट, वर्ड लगा है पार्ट, इमेजिनरी नंबर अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग, गॉट इट, ओके, Yes, sir. सो टेक द स्क्रीनशॉट, 1 second, yes, take it,
सुश्री जी गॉट इट, हेलो आदित्य गॉट इट, हेलो तन्मय गॉट इट, तन्मय जी, अरमान जी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 टेक इट, बहुत इजी है, Done, sir. यस बहुत इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं, ये छोटा बच्चा का खेल है, मतलब क्या है ये, बस लिखा है ऐसा, इसको देख के बोलना है रियल पार्ट कौन है इमेजिनरी पार्ट कौन है, इसमें कोई डिफिकल्टी Yes. होना नहीं चाहिए, इट्स वेरी इजी, बच्चों का खेल है ये, कुछ नहीं है इसमें। हाँ ओके, आगे चलते हैं। हाँ ओके, और इधर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानने वाले हैं, वेरी इंटरेस्टिंग चीज़, हाँ मतलब वही कंटिन्यू कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यू कर रहा है कि एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, हर रियल नंबर भी खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब आप जानकर हैरान हो जाओगे, ऐसा कैसे, अरे हर रियल नंबर कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो हम दिखा देते हैं आपको, सारे रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, कैसे। हाँ, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, मतलब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नहीं होते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, बेटे कोई एक रैंडम रियल नंबर का नाम मुझे बोलो जरा, सपोज √2, राइट, √2 इज ए रियल नंबर, राइट, √2 इज ए रियल नंबर, राइट, अच्छा Yes, क्या, sir. ओके बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन में हमने क्या लिख रखे हैं कि कोई भी नंबर अगर a प्लस आई बी फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जिधर a एंड b बोथ आर रियल नंबर्स, ऐसा फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। फॉर्चुनेटली हर रियल नंबर को हम ऐसा फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे दिखोगे बेटे, √2 के जगह क्या मैं लिख सकता हूँ, √2 प्लस 0 इंटू आई, Yes, sir. हाँ लिखिए। या फिर क्या मैं इसको लिख सकता हूँ √2 माइनस 0 इंटू आई, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है ना बेटे, दोनों का Yes, वैल्यू sir. √2 है, राइट, तो Yes, आ sir. गया ना आपका a प्लस आई बी फॉर्म में, राइट, सो एवरी Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा करके बहुत सारे हम एग्जाम्पल लेते हैं, -2 को लिख सकते हैं ना, -2 प्लस 0 आई, या फिर -2 माइनस 0 आई, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब -2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये जो है ये वही है, तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो -2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। 0 इज ऑल्सो ए रियल नंबर and 0 is also a complex number because every real number is also a complex number। 0 को हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0y, -0 माइनस 0 प्लस 0y, -0 माइनस 0y, 0 माइनस 0y, सब का वैल्यू 0 है और सब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट, क्योंकि सब a प्लस आई बी फॉर्म में है। गॉट इट? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, तो ध्यान दो, दुनिया के सारे रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इसीलिए फॉर दिस रीजन हम बोलते हैं, ये कुछ मतलब कोई मतलब बहुत बड़ा है, मतलब ये नहीं कि मतलब एग्जाम में नहीं आएगा, बस जान लो, एक जनरल नॉलेज। फॉर दिस रीजन वी से दैट complex numbers are just an extension of real numbers, हम बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर का एक एक्सटेंशन है, मतलब सारे रियल नंबर तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स नंबर, बात खत्म, मतलब रियल नंबर को थोड़ा एक्सटेंड किए हैं, रियल नंबर सिस्टम को थोड़ा एक्सटेंड कर दिए हैं, क्योंकि सारे रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। यू गॉट इट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसीलिए बोलते हैं ओके कि रियल नंबर सिस्टम का एक एक्सटेंशन है। ओके, तो गया
तो इधर किसको इसमें डाउट है पूछ सकते हो बिंदास कि सारे रियल नंबर दुनिया के ब्रह्मांड के सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं, इसमें किसी को कुछ डाउट है? यू कैन आस्क, नो डाउट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। हाँ सर। ओके, लेट्स मूव ऑन। और इधर हम एक पॉइंट लिखेंगे, एक मिनट। ओके, यस, let me first you take the screenshot. 1 second. First you 1 second. Yes, take it. Done. Okay. Done, sir. Yes sir. ओके, तो अब एक इम्पोर्टेंट चीज हम सीखेंगे इधर, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे बोलते हैं ना, आइडियल ह्यूमन बीइंग, गुड ह्यूमन बीइंग, बैड Yes, sir. ह्यूमन बीइंग, वैसे वो एक टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, जैसे कोई इंसान को बोलते हैं ना बुरा इंसान, अच्छा इंसान, उसी तरह एक टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। और वो क्या होता है, देखो बेटे, ऑल रियल नंबर्स, बेटा अभी पढ़े ना, दुनिया के सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, बस। तो ऑल रियल नंबर्स आर कॉल्ड प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आर कॉल्ड प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यू गॉट इट? सारे रियल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, जैसे कि एग्जांपल, सारे रियल नंबर 2a के प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, -2a के प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। सारे रियल नंबर्स, जितने रियल नंबर होते हैं, सब क्या हैं? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। यू गॉट इट? ओके, Yes sir. ओके। एंड यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पार्ट हम देखेंगे, एवरीबॉडी पे अटेंशन। लेट Z बी ए प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज Z एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज Z एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू 0 होता है हमेशा के लिए। दुनिया का कोई भी प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर आप अगर उठाओ तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। चलो एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं बेटे, बताओ एक एग्जाम्पल दो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का। अरे हर रियल नंबर को बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एग्जाम्पल देते हैं ना, 2 इज ए प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? Yes sir. 2. ओके, 2 एक रियल नंबर Yes, है, sir. रियल नंबर इज ए प्योरली रियल नंबर को प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। अच्छा बेटे, 2 को हम अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 2 + 0i या फिर 2 - 0i, ऐसे लिखोगे ना बेटे? हेलो, Yes, sir. ओके। दोनों फॉर्म में देखो, इधर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटे? इसका, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटे? 0। 0. इधर भी क्या है बेटे? -0 मतलब क्या होता है? 0, राइट? Yes. -0, राइट? तो कोई भी प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0, रिमेंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। यू गॉट इट? Yes sir. ओके, Yes sir. Yes, sir. so remember, if imaginary part of a complex number is equal to 0, then that complex number Z is called a purely real complex number। उसको हम क्या बोलते हैं? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। यू गॉट इट? ओके, Yes sir. ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। हेलो, सेनापति कुछ बोल नहीं रहा है। अरे मुझे मार दोगे क्या? लास्ट को मार दोगे क्या मुझे? मतलब अभी कुछ नहीं पूछ रहे हो, मतलब पूरा लास्ट को बर्बाद कर दोगे मुझे?
कि सर बोलिए सर क्या हुआ, सर ये प्रॉब्लम हो गया है, सर ये कुछ दिमाग में नहीं घुस रहा है, सर क्या लिखें। अबे अभी पूछो अगर डाउट है। लास्ट को मर्डर मत कर दो अपना टीचर को, टीचर लास्ट को बर्बाद हो जाता है जब पूरा चैप्टर आपका डाउट रह जाता है। तो फिलहाल अभी पढ़ रहे हैं तो अभी इस पोर्शन में डाउट है तो पूछो मुंह खोल के। शर्माते किसको हो? सर नहीं है सर। ओके 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 आगे चलते हैं। सर वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं है वो वाला कैसे सर? अभी नहीं, मतलब हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता हर है। रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होता है, हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नहीं होता है। अच्छा ये हाँ सर वही ओके ओके complex अच्छा एक कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जांपल लेता हूँ 2 + 3i। ये कैसे दुनिया का ये ऐसा नंबर कैसे दुनिया में रियल नंबर हो जाता है? ये कहाँ का रियल नंबर हाँ सिस्टम है? यू गॉट हाँ इट? ये सर, हाँ ओके सर। ओके 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 टेक द स्क्रीनशॉट एवरीबॉडी एंड लेट्स मूव ऑन। डन Done, sir. ओके Done, sir. ओके सो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने पढ़ रखे हैं, राइट? ओके अभी आते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे कि अच्छा इंसान, बुरा इंसान, सच्चा इंसान, झूठा इंसान। उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर का और एक टाइप है दैट इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? तो बेटे देखो, ऑल इमेजिनरी नंबर्स आर प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सारे इमेजिनरी नंबर जो होते हैं, उनको हम और क्या बोलते हैं? प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। बेटे इमेजिनरी नंबर के बारे में आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था अभी कि कोई भी रियल नंबर इंटू आई ऐसा फॉर्म में जो नंबर दिखता है दैट इज योर इमेजिनरी नंबर, राइट? उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर और क्या होते हैं ना किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होते हैं, राइट? किसी ना किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होते हैं। हर इमेजिनरी नंबर किसी ना किसी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट होता है, 2 स्क्वायर रूट में से एक होता है। ओके अच्छा, तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दुनिया के सारे इमेजिनरी नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं बेटे 2i इज एन इमेजिनरी नंबर, राइट? Yes, sir. अच्छा, क्या बेटे 2i को हम लिख सकते हैं 0 + 2i? 0 + 2i. आ गया ये आपका a + ib फॉर्म में, आ गया आपका a + ib फॉर्म में, हाँ सर, Right? ये सर आ गया, ये सर। राइट? Yes, sir. ओके बेटे -3i को लिख सकते हैं 0 - 3i, आ गया a + Yes, ib sir. फॉर्म में। ओके 0 + -3i आ गया। ओके तो एवरी इमेजिनरी नंबर, ये सब एक इमेजिनरी नंबर है। 2i -3 सब इमेजिनरी नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, राइट? ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। हर इमेजिनरी नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। यू गॉट इट? एंड इनको हम क्या बोलते हैं? प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। प्योरली इमेजिनरी, बेटे नाम से ही आपको पता चलना चाहिए। प्योरली, दे आर प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि इनमें रियल पार्ट 0 है। देखो जरा, देखो ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 है, देख रहे हो? सिर्फ इमेजिनरी नंबर है, प्योरली इमेजिनरी से बोलते हैं ना, प्योरली अच्छा इंसान, ये नंबर प्योर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी, सब इमेजिनरी ही इमेजिनरी है। इसका पहले वाला को जो बोले थे प्योरली रियल, 2 इज ए प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये पूरा एग्जैक्ट एक रियल नंबर है, राइट? रियल नंबर, और रियल नंबर को हम बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। उसी तरह ये सब इमेजिनरी नंबर है, और इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, हर इमेजिनरी नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। एंड इमेजिनरी नंबर्स को हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एंड रियल नंबर को हम बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आर वी क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके
और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट, इफ जेड इज ए प्योरली imaginary, if z is a purely imaginary complex number, then real part of this complex number is equal to 0. बेटा अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल में आप देख लो, ये जो 3 एग्जाम्पल हम लिए प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये जो 2 लिए, इसमें रियल पार्ट क्या है बेटा? 0 है, राइट? चेक कर लो, रियल पार्ट 0 है, राइट? हेलो, यस सर, रियल पार्ट 0 है, देख लो, सबको दिखाई दे रहा है प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0? यस सर। Okay. So take the screenshot. Take it. Done. Done, sir. Okay. तो फाइनली हम एक इम्पोर्टेंट नोट लिखेंगे, फाइनल नोट लिखेंगे कि if रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 0, z एक, सपोज z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम हम z दिए हैं, सपोज z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर z का रियल पार्ट 0 हो जाता है तो हम बोलते हैं कि z इज ए प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल में 2i माइनस 2i, 3i माइनस 3i, you got it? These are purely I minus I. Yes sir. Okay. Second, if imaginary part of a complex number is equal to 0, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर को z को क्या बोलते हैं? z इज ए प्योरली रियल। देखो, अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है तो हम बोलते हैं z इज ए प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल में 2 minus 2 3 minus, you got it? So ये सब क्या है? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। You got it? ओके। यस सर। अच्छा बेटे, अभी एक भयंकर नोट लिखेंगे, और वो भयंकर नोट क्या है कि बेटे याद रखो, 0 इज बोथ प्योरली रियल and purely imaginary complex number। यस सर। बेटे मैंने अभी बोला था हर रियल नंबर दुनिया का एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, राइट? एंड 0 भी एक रियल नंबर है, सो 0 इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन 0 सिर्फ अकेला 0 एक ऐसा नंबर है, सिर्फ अकेला 0 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। जानना चाहोगे कैसे? 0 को हम बोलते हैं प्योरली रियल एंड ऑल्सो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, यस सर। ओके बेटा, क्या मैं 0 को लिख सकता हूँ 0 प्लस 0i? 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0i हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अच्छा, इसका रियल पार्ट क्या है बेटे? इसका रियल पार्ट क्या है? सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z इज इक्वल टू 0, क्या है इसका रियल पार्ट? 0। बेटा अगर रियल पार्ट 0 तो ये हो गया प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि रियल पार्ट 0 है। अच्छा, व्हाट इज इस इमेजिनरी पार्ट? वो भी 0। बेटे अगर इमेजिनरी पार्ट 0 तो हो गया प्योरली रियल। अरे मेरे बात समझ रहे हो? तो रियल पार्ट भी 0, इमेजिनरी पार्ट भी इसका 0, दोनों 0, मतलब ये बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। काम खत्म।
You got it? Okay. So 0 is both purely real and आप इसको 0 माइनस 0 आई भी लिख सकते हो. आप इसको अगर 0 माइनस 0 आई लिखते हो तो व्हाट इज द रियल पार्ट? 0. 0. व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट? माइनस 0 और इक्वल टू 0, राइट? माइनस 0 इज सेम एज 0. तो हो गया ना, रियल पार्ट भी 0, तो प्योरली इमेजिनरी. इमेजिनरी पार्ट 0, प्योरली रियल. ओके ओके ओके. जो थोड़ा बहुत नहीं समझ पाए हो बेटे, आप पूरा मतलब वीडियो देख के मतलब बाद में समझ लेना. आज ही मतलब समझ लेना इसको, कभी बाद में रख लेना मत. बाद में समझने के लिए मुझे ज़िंदा मार दोगे तो मैं बहुत गुस्सा हूँगा, क्योंकि मुझे अब टीचर को हमेशा स्टूडेंट यही परेशान करते हैं. पढ़ाई के टाइम पे डाउट नहीं पूछते हैं, लास्ट को रख देते हैं एंटायर चैप्टर कि सर मतलब एक पूरा एंटायर चैप्टर, सर ये क्या शुरू से पढ़ाए थे, कुछ नहीं समझ में आया था. सर इमेजिनरी पार्ट क्या पढ़ाए थे, क्या इमेजिनरी नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट आर डिफरेंट, क्या सर दिमाग में कुछ घुसा ही नहीं. अबे घुसा नहीं है तो उधर क्यों नहीं पूछ रहे हो? पूरे लास्ट को ख़त्म हो गया. मतलब जो बोलते हैं ना उड़िया में, पूरा रामायण सरीगला पचरा होची सीता माई के उंडीरा. यू गॉट माय पॉइंट? यू गॉट इट? Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. मतलब पूरा जेड के बारे में पूरा सब कुछ खत्म हो गया कि जेड कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली इमेजिनरी, प्योर सब कुछ. लास्ट को बच्चे का डाउट है सर इमेजिनरी पार्ट क्या होता है. अब उसको इमेजिनरी पार्ट अगर समझ में नहीं आया तो ये सब की समझ में आया होगा. तो ठीक है, डोंट वरी. फॉर्चुनेटली हम वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो अगर कुछ डाउट है तो समझ सकते हो वीडियो देख के, लेकिन तुरंत वहीं पर पूछो, राइट? लेट मी रेज इट. Yes sir. Yes sir. Okay. Okay. Now, standard form of a complex number. Standard form of a complex number. What is standard form of a complex number? एक complex number का standard form. बेटे फॉर्म को ना आप उड़िया में ऐसा समझ, हिंदी उड़िया जैसे में समझो चेहरा. हाँ, चेहरा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड चेहरा कैसा है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म उसका कैसा है, मतलब वही उसका स्टैंडर्ड प्रॉपर फॉर्म है. बाकी फॉर्म में आप उसको अगर लिखते हो तो ग्रांटेड दैट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन उसको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बोला जाएगा. स्टैंडर्ड फॉर्म उसका स्टैंडर्ड चेहरा कैसा होता है, राइट? ओके. जैसे कि हीरोइन बहुत मेकअप लगा के मतलब टीवी में देख के बहुत टीवी में आ गया है, तो वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है. उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है बिना मेकअप का जो फॉर्म है, दैट इज उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है. मेकअप लगा देने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ. यू गॉट माय पॉइंट? यू गॉट इट? हेलो. Yes sir, yes sir. हाँ. सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज a प्लस आई बी. कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है a प्लस आई बी. अगर आप उसको a प्लस आई बी फॉर्म में लिखते हो, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म. पर a एंड b आर बोथ रियल नंबर्स एंड a इज इक्वल्ड व्हाट? a इज इक्वल्ड व्हाट? व्हाट इज a? a इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट. बेटे इमेजिनरी नंबर नहीं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. Yes sir, imaginary part. ओके. तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म. कुछ क्वेश्चन करेंगे, टेक द स्क्रीनशॉट. डन. Done sir. Yes sir, done. डन. ओके. सो एक क्वेश्चन करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक्सप्रेस the following complex numbers in standard form. कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ देंगे हम और आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना? तो हम डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाएंगे. ओके बेटे, ये आपका चैप्टर 5 है ना? हेलो, व्हाट अबाउट अनुभा? व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट हैपनिंग अनुभा? यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल. नहीं है सर. Why not? But girls must be there. Lot of girls must be there. They are not responding at all.
Sir, only 27 students are there. Why? What about the Sir, rest? only 24. What about the Sir, rest? 25. What about the rest? सर पता नहीं सर। पता नहीं सर किधर गए। मार देंगे भाई मुझको, क्या करें। सर आपने तो ग्रुप में ओके तो एग्जाम्पल 2 में बोला है कि ये जो दो नंबर है इनको a प्लस आई बी फॉर्म में एक्सप्रेस करो। हाँ तो पहला नंबर बेटे पढ़ के बताओ, -5i इंटू 1/8 इंटू आई, राइट। ओके -5i इंटू 1/8 आई, और इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a प्लस आई बी, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी देखो Yes, sir. बेटे -5i इंटू 1/8 आई को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो चलो पहले देखो बेटे ये i इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, और ये -5 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा, -5/8 इंटू आई स्क्वायर, राइट। ओके एंड व्हाट इज आई स्क्वायर? आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, राइट, -1। सो -5/8 इंटू -1 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 5/8, राइट, बिकॉज आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। एवरीबॉडी गॉट इट? ओके यस सर। एंड 5/8 को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए बस क्या करना है, 5/8 प्लस 0i, या फिर -0i भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर Yes, करेक्ट। sir. तो हो गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया हाँ, स्टैंडर्ड sir, फॉर्म। ओके सर हाँ यस, सर अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स sir, नंबर, ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे वो, मतलब हाँ क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई। रियल पार्ट को रियल पार्ट मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लाई होगा। ना 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 उसका देखोगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के कुछ अलग होगा, देखोगे। ठीक है। ओके डन, गॉट इट। ओके सेकेंड बिट देखो बेटे, सेकेंड बिट में दे रखा है -i इंटू 2i, पढ़ो -i इंटू 2i इंटू -1/8 इंटू आई, राइट, इंटू -1/8 इंटू आई, -1/8 इंटू Cube. आई, इसका क्यूब, राइट, इसका क्यूब दे रखा है, और Yes, इसको sir. हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, राइट। अच्छा तो बड़े देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले तो इसको जरा सॉल्व कर दो, ये आई क्यूब को सॉल्व कर दो बेटे। अच्छा ये पहले -i इंटू 2i क्या हो जाएगा, -2i स्क्वायर, राइट, माइनस इंटू 2 -2 i इंटू आई -2i स्क्वायर, राइट। ओके अच्छा मुझे बात बताओ, माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस होता है, राइट। माइनस को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो वही माइनस रहेगा, राइट। ओके यस सर। तो माइनस का क्यूब माइनस, फिर 1/8 का क्यूब, फिर i का क्यूब, यू गॉट इट, Yes, sir. क्लियर? यस सर। ओके बट आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, राइट। यस सर माइनस यस सर। तो -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, 2। 2 हो जाएगा, राइट। ओके यस सर। ओके इधर बेटे 1/8 का क्यूब, बेटे 1/8 का क्यूब कितना होता है, सर 1/, Sir, 1/512. So 1/512. 1/512, ओके 1/512 इंटू बेटा आई क्यूब क्या होता है, -i, राइट। -i। यस सर। ओके बेटा आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना मतलब लंबा करने की जरूरत नहीं, मतलब कभी कभी स्टेप आप डायरेक्ट यहाँ पर जैसे कि आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, -2i स्क्वायर इज इक्वल टू +2, काम खत्म। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो -2 इंटू -1 कितना हो गया, 2 इंटू बेटे एक माइनस और ये एक माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, राइट, 512 इंटू आई, मेरे पास समझ रहे हो ना, माइनस माइनस प्लस हो गए, 1/512 यस सर। इंटू आई, यस सर। गॉट इट। ओके यस सर। ओके सर। तो बेटे ये काट दो, 2 से काट दो, 2 से काटने से कितना हो जाता है, 256। 206। So 206 sir. 206 206। 206 तो ये क्या हो गया, 1/206 इंटू आई, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है। और बेटे क्या समझ पाते हो,
कि दिस इज ए प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, समझ पाते हो, क्योंकि इमेजिनरी नंबर है, Yes, नंबर sir. इनटू आई, दिस इज प्योरली सर इमेजिनरी। 256 हां सर 256 56 सर 256 ओके ओके 256 256 बेटा इट इज ए प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। देखो बेटा इमेजिनरी नंबर है और एक रियल नंबर का था आई मल्टीप्लाई। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 0 प्लस 0 + 1 आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में। हेलो यस सर क्या है Yes, इसका sir. रियल, इसका Yes, रियल sir. पार्ट क्या है? 0, गॉट इट। दैट्स Zero. व्हाई इट इज ए प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर रियल पार्ट 0 है दैट इज कॉल्ड ए प्योरली। तो ऐसे हम नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। ओके टेक द स्क्रीनशॉट। डन। यस सर Yes, sir. Yes, sir. डन। Yes, sir. ओके बेटा अटेंडेंस अटेंडेंस कोई सेनापति भी नहीं है? ले लिया ले सर, लिया मैंने हो? ले लिया। ओके हाँ सर ले लिए हो। जो नहीं आए हैं आज के क्लास में उनका नाम मुझे ज़रा काइंडली पूरा लिख के मुझे देना, पूरा एक लिस्ट बना के, ठीक है। स्टूडेंट्स एब्सेंट लिखना पेज के ऊपर और नेम लिखना, नेम लिख के उसका स्क्रीन मतलब उसको फ़ोटो उठा के ग्रुप में सेंड करना। ग्रुप में ऐसे क्यों सेंड करोगे? ग्रुप में सेंड करने से वो बच्चों को पता चला है कि हमें पता है कि वो एब्सेंट है, अटेंशन गया है उनके ऊपर, और उनका नाम मतलब उनके बारे में सेपरेटली डिस्कस किया जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट? हेलो यस Yeah. सर ओके यस सर सर हम तो बात कर रहे हैं सर, वो तो स्क्रीनशॉट ले लिया, उल्टा पुल्टा हो सकता है डिस्प्ले। नहीं नहीं ठीक से लिया है मैंने, ठीक से सर लिया। हम लिख सर मैंने लिख लिया हूँ सर। ओके 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 जो एब्सेंट है उनका नाम मुझे सर हाँ यस सर यस सर क्लास 12:40 के पास मेरा ऑटोमेटिक नेट कट हो गया तो मैं निकल गया, तो हाँ। फिर से इसी बीच में किसी ने तो स्क्रीन नहीं लिया। नहीं अरे लिया है तेरा। ओके ओके थैंक यू सर। ओके हाँ ये वाला क्वेश्चन को करते हैं बेटा। एग्जाम्पल 3 कि एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, इसको a प्लस आई बी फॉर्म में लाना है। क्या क्वेश्चन देखा है? 5 माइनस 3i का होल क्यूब। हाँ एक्सप्रेस 5 माइनस 3i का होल क्यूब इन a प्लस आई बी फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म राइट। तो इसमें बेटा कुछ करने का नहीं, a माइनस बी का होल क्यूब लगाओ और क्या कर सकते हो। 5 माइनस 3i का क्यूब दे रखा है, लगाओ a माइनस बी का होल क्यूब। व्हाट इज a माइनस बी का होल क्यूब? ए क्यूब इधर क्या है बेटे? a 5 है, b क्या है बेटे? 3i राइट। a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगाना। क्या फॉर्मूला है? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अगर बेटा ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो ऐसा काम कर लो ना, ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, सबके सब माइनस माइनस माइनस, यस सर यस सर ये ठीक है। यही आ जाता ये है, सर यही आ जाता है। देखो माइनस 3a स्क्वायर बी और ये माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। हाँ तो दोनों में से कोई एक याद रख लो, सब माइनस के माइनस और प्लस में सारे प्लस प्लस होंगे। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b तो लगा देते हैं। तो a क्यूब मतलब 5 का क्यूब माइनस b क्यूब मतलब 3i का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी मतलब 3 इंटू a स्क्वायर। बेटे इसको इरेज कर लेता हूँ। हाँ इसको इरेज कर लेता हूँ क्योंकि जगह नहीं होगा। Yes, sir. यस सर ओके चलो मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा बड़ा बड़ा है इसीलिए, नहीं तो ये है ये इसलिए नहीं सर, ठीक ही है क्योंकि सर स्क्रीनशॉट में ऐसा नहीं होता है। ओके ओके सो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी। हाँ 3a स्क्वायर में मतलब a क्या है 5 का स्क्वायर इंटू b क्या है 3i राइट माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर 3a क्या है 5 राइट b स्क्वायर b क्या है 3i का स्क्वायर। यू गॉट इट? Yes, sir. आ गया Yes, sir. बस तो अब लगाते हैं बेटे। 5 का क्यूब क्या है बेटे? 5 सर 125 125 माइनस बेटे 3 का क्यूब क्या है बेटे? 27 इंटू आई का क्यूब ओके माइनस बेटे 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 75 इंटू ये भी 3 कितना हो जाएगा? या फिर 25 इंटू 9 कर दो, कितना हो जाएगा? 225 राइट सर 225 सर 225 तो ये आ गया 225 इंटू आई
देख रहे हो? ओके बेटा इधर इधर देखो 3 इंटू 5 क्या होता है 15 इंटू 3 का स्क्वायर, ये देखो 3i का होल स्क्वायर है, मतलब 3 का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 इंटू आई का स्क्वायर। गॉट इट? Yes, इसे sir. लिखने से कोई Yes, स्टेप sir. में मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है 125 माइन, अच्छा बेटा आई क्यूब का वैल्यू कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई क्यूब? माइनस आई, राइट? ये सर हाँ यस सर। तो ये आई क्यूब हो सर। गया। हाँ यस आई क्यूब हो सर गया। कोई मैसेज भेज रहे, थोड़ा सर को बोल दीजिए तो प्लीज मैसेज सीन कर दीजिए थोड़ा। अच्छा किसमें? सर मीट में सर, मीट में तो चैट बॉक्स में। सुश्री इज प्रेजेंट सर। ओह हाँ तो सुश्री जी बोल क्यों नहीं रही हो कुछ? ओके सो आई क्यूब इज माइनस आई, राइट? आई क्यूब इज माइनस आई। तो इधर ये जो Yes, आई sir. क्यूब, यस इधर ये जो सर, आई क्यूब, सुश्री का नहीं सर, राजेश का मैसेज दिख। हाँ सर, वो राजेश बोल रहा था कि उसका चार्ज खत्म हो रहा है तो वो लेफ्ट हो जा रहा है, 7% है उसका बस। ओके 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 ओके। इस वजह से। तो बेटा आई क्यूब का वैल्यू कितना है बेटे? माइनस आई है। हाँ आई क्यूब का वैल्यू माइनस सर आई माइनस है। है सर। तो ये आई क्यूब की जगह अगर माइनस आई लिखते हैं तो माइनस ये माइनस प्लस 27 आई हो जाएगा बेटा। गॉट इट? हेलो माइनस माइनस प्लस यस सर। फिर 2 माइनस 225 आई। बेटा आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1, राइट? यस ये सर यस सर। तो ये आई स्क्वायर -1 मतलब 15 इंटू 9 कितना होता है? 15 जा 9 135 135 135 135। और ये -1 135 तो -135 हो माइनस गया। बस अब खेल आसान हो गया। बस बेटा रियल पार्ट रियल से रियल को इकट्ठा कर दो, रियल को इकट्ठा कर दो। 125 माइनस 135 और इधर सारे इमेजिनरी को इकट्ठा कर दो। हाँ रियल नंबर को इकट्ठा कर दो, इमेजिनरी नंबर को इकट्ठा कर दो। देखो ये दोनों रियल नंबर है, दे आर रियल नंबर्स, और ये क्या है? इमेजिनरी नंबर, राइट? सारे रियल नंबर इकट्ठा, इमेजिनरी नंबर को इकट्ठा। और इसका वैल्यू है -10 और इसका वैल्यू क्या है बेटे? सर ये -198 -198। सर 198 वो प्लस है, ये माइनस है ना, तो 27। ओके हाँ सर 198। हाँ ये सर Okay. 198 सर। ओके तो बेटा आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, यस सर। राइट? यस और सर। लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं दिख रहा है तो देख सकते हो, एक ही बात है। स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, राइट? ओके दैट्स इट। यस सर हो गया। ओके तो ये क्वेश्चन हो गया। तो आपको मैं होमवर्क देता हूँ बेटे, ये क्वेश्चन करके लाओगे, ये क्वेश्चन खुद करोगे। एग्जाम्पल 4, अच्छा मैं एग्जाम्पल 4 ये सर एग्जाम्पल 4 खुद कर लोगे। मैं बस इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा ही देता हूँ। लेट मी इरेज इट। यस sir. सर। Yes, sir. ओके सर। No, take the screenshot, take the screenshot. 1 second. Yes, take it. Done? Okay. अब मैं Done, sir. आपको अब मैं आपको इक्वालिटी बिटवीन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा देता हूँ बस, ठीक है? इक्वालिटी बिटवीन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वालिटी क्या होता है? हाँ ओके बेटे देखो, सपोज Z1 एंड Z2 आर 2 रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लेट Z1 एंड Z2 बी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सपोज Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ओके? देन Z1 इज इक्वल टू Z2, दोनों को हम इक्वल तभी बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करे तो। पहला कंडीशन है दोनों का कॉरिस्पॉन्डिंग रियल पार्ट सेम होना चाहिए एंड दोनों का कॉरिस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट भी सेम होना चाहिए, तभी जाके हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल बोलेंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 को तभी इक्वल बोलेंगे अगर दोनों का रियल पार्ट इक्वल है, दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल है। यू गॉट इट? जैसे कि एग्जाम्पल, Yes, sir. 2 + 3i and 2 + 3i are equal complex numbers, right? Are equal complex numbers.
ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हाँ इक्वल है। सर। ऐसा क्यों? क्यों इसका भी रियल पार्ट 2 है, सपोज ये Z1 है और ये Z2 है, इसका भी ये Z1 का रियल पार्ट इधर क्या है 2 है, Z2 का रियल पार्ट इधर क्या है 2 है, दोनों का रियल पार्ट इक्वल इक्वल। इसका इमेजिनरी पार्ट 3 है, इसका भी इमेजिनरी पार्ट 3 है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉरिस्पॉन्डिंग रियल पार्ट भी इक्वल, कॉरिस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल। दैट इज द रीजन व्हाई वी से दैट दे आर इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर दोनों में से कोई एक भी मिसमैच हो गया, अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन फेल हो गया तो दे आर नॉट इक्वल। रिमेंबर दिस। ओके ओके यस सर। ओके, तो इसी के ऊपर बस एक क्वेश्चन करेंगे, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x and y if z1 is equal to x plus 2y and z2 is equal to 3 plus y minus 1i are equal। तो बेटे इधर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, एक है Z1 x प्लस 2y, दूसरा दे रखा है Z2 दे रखा है 3 प्लस y माइनस 1 इंटू y, और बोला है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। हाँ, गिवन दैट दे आर इक्वल। अच्छा, अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो दोनों का रियल पार्ट इक्वल होना चाहिए, राइट? यस सर Right. 3 होगा। यस सर। ओके, तो इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 मस्ट बी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2, एंड व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ Z1 x, एंड व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ Z इज x इक्वल टू 3। ओके, सिमिलरली अगर दोनों इक्वल है तो दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होना चाहिए। इमेजिनरी पार्ट Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ y is equal Z2। to 3। यस So 2 is equal to y is equal to 3 y is equal to 3। यस, 2 इज इक्वल टू y माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 3, यस सर। राइट? तो Yes. इस चीज़ का ध्यान देना, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान देना। तो ये गया इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर भी पढ़ा देता हूँ बेटे, 5 मिनट और तो ऑर्डर पढ़ा देता हूँ, 5 मिनट ऑर्डर खत्म हो जाएगा आपका। ये झंझट खत्म हो जाएगा, ऑर्डर खत्म। नेक्स्ट क्लास से डायरेक्ट अलजेब्रा पढ़ेंगे उसका, ठीक है? डायरेक्ट एक्सरसाइज करेंगे, अलजेब्रा सर ऑर्डर क्या होता है सर? देख, सुन बेटे, सब पेशेंटली सुन रहे हो? हेलो? यस सर। यस ओके सर ओके, important। ओके, very important what I am going to tell you, very important। remember, पहले तो मैं वो लिख देता हूँ सेंटेंस, फिर उसके बाद में बताऊंगा। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स do not follow order pattern unless both are purely real complex numbers। तो देखो बेटा, मैं आपको समझा देता हूँ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर मैं आपको दूंगा। हाँ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एग्जाम्पल दो कॉम्प्लेक्स नंबर दूंगा। Z1 एक है 2 प्लस 3i, Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3i। बेटे इन दोनों में बड़ा कौन है, छोटा कौन है? व्हिच कॉम्प्लेक्स नंबर इज ग्रेटर देन व्हिच कॉम्प्लेक्स नंबर? व्हिच कॉम्प्लेक्स बड़ा कौन है और छोटा कौन है? बेटे देखो, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। रिमेंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर Yes, sir. ऑर्डर पैटर्न फॉलो नहीं करते। रिमेंबर हियर Z1 is not greater than Z2, Z2 is also not greater than Z1। कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है। Yes, यू sir. गॉट माई Yes, पॉइंट? यस सर। बस इक्वालिटी हम बोल सकते हैं, इक्वालिटी के बारे में हम बोल सकते हैं, इक्वालिटी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर पैटर्न नहीं बोल सकते, इक्वालिटी बोल सकते हैं। इधर ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों का रियल पार्ट तो इक्वल है 2 लेकिन इमेजिनरी पार्ट इसका 3 है, इसका -3 है। दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन कोई बड़ा कोई छोटा इनमें से कुछ नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट? यस सर। यस अच्छा। सर।
अच्छा बेटा बताओ, ये सपोज एक लिख रहा हूँ 3i, Z2 लिख रहा हूँ -3i, ये में कौन बड़ा है कौन छोटा है? ना तो कोई बड़ा ना तो सर, कोई कोई छोटा। नहीं। ना कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं। कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। रिमेंबर, इधर ना तो Z1 Z2 से बड़ा ना तो Z2 Z1 से बड़ा, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। हाँ, सपोज Z1 इज इक्वल टू 3i, Z2 इज इक्वल टू 2, ये भी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। Z2 इज इक्वल टू 2, ये क्या प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर? प्योरली इमेजिन नंबर। स्टिल दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और इन दोनों में भी कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, राइट? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, लेकिन एक कंडीशन है जहां पर हम बोल सकते हैं कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा, और वो कंडीशन क्या है? क्या लिखा है? ऑनलेस रियल। बोथ आर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। यस सर। अगर दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तब हम बोल सकते हैं बड़ा की छोटा। जैसे कि सर 2 and -2। हाँ, सपोज में एक Yes. कॉम्प्लेक्स नंबर दिया Z1 विच इज इक्वल टू 2, दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया Z2 विच इज इक्वल टू 3। इधर देखो दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इधर हम बोल सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। Z2 इज ग्रेटर देन Z1, सर Z2 Z1। इधर सिर्फ और सिर्फ Yes, sir. यही कंडीशन में हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर में से कौन बड़ा कौन छोटा बोल सकते हैं, वरना नहीं बोल सकते। गॉट इट? अगर दोनों के दोनों प्योरली रियल हुए तो, दोनों के दोनों अगर प्योरली रियल हुए तो। दूसरा नोट, ये ऑलरेडी बताया था, बताता हूं बस। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ए कॉम्प्लेक्स नंबर is neither positive nor negative unless it is a purely real complex number, समझाता हूँ मतलब, डोंट वरी। वो बोल रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ना तो पॉजिटिव होता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ना तो पॉजिटिव बोल सकते हैं ना तो नेगेटिव बोल सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है जिस पर जहाँ पर उसको हम पॉजिटिव नेगेटिव बोल सकते हैं, और वो कंडीशन क्या है? अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ तो। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ 2 + 3i इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। यू गॉट माई पॉइंट? हेलो, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ओके, -3i इज नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। नॉर नेगेटिव। माइनस लगा तो मत बोल देना कि ये नेगेटिव है, गलती मत कर देना। तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें याद रखना भी होता है। बट अगर मैं एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर पकड़ूं, जैसे कि -3 z इज इक्वल टू, अगर मैं एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर पकड़ूं -3, एक प्योरली रियल, ये हम बोल सकते हैं कि दिस इज नेगेटिव। नेगेटिव सर। हाँ, यस सर। नेगेटिव। यस। या फिर मैं अगर लूँ z इक्वल टू 4, हाँ, दिस इज पॉजिटिव सर। लेकिन अगर दोनों के, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल नहीं है तो ये ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। ओके, सो वही लिखा मैंने कि ये नंबर एक नंबर लिखा क्या रे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ना लिख के नंबर क्या लिख दिया? अरे सर कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ सर, मैं तो देखा था लेकिन सोचा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव अनलेस इट इज ए प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हुआ तो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। तो टेक द स्क्रीनशॉट एंड दिस मच फॉर टुडे। ओके, 1 सेकेंड। Yes, take it. Done sir. Done. Okay. Done. Yes sir. Done. Done sir. अच्छा ये सर। अच्छा, हेलो।